Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Systematic Way to Physics. Dear students, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें. Chapter number 1 is about measurements. Measurement is a comparative process in which a given physical quantity is compared with the standard quantity of the same kind. What is natural philosophy? The study of nature and the whole physical universe before the advent of modern science is called natural philosophy. At the beginning of 19th century, natural philosophy was divided into two branches. Number 1, biological science. Number 2, physical science. Biological science deals with the living things. For example, botany, zoology, microbiology, etc. While physical science deals with non-living things such as physics, chemistry, geology, astrology, etc. So we can see physics is a basic branch of physical science. Also, physics is an experimental science. And in an experiment, the most important thing is a measurement. That's why chapter 1 emphasizes on the need to take correct readings of measurements. How many frontiers of fundamental science are there? There are three main frontiers of fundamental science. Number 1, world of extremely large, for example, universe itself. Number 2, world of extremely small, for example, electron, proton, neutrons, neutrino, antineutrino, etc. And number 3 is world of complex matter, means things from molecule to earth. Now, what is physics? The branch of science which deals with the study of energy, matter and the relationship between them is called physics. फिजिक्स में हम एनर्जी और मैटर और इनके आपस में रिलेशनशिप, इसके अलावा हम स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस एंड टाइम, लॉज ऑफ मोशन और इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर, नेचर एंड टाइप ऑफ फोर्सेस, हीट एंड थर्मोडायनामिक एटसेट्रा, बहुत सारी चीज़ों को हम स्टडी करते हैं. देयर आर मैनी ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, few of them are here. So first one is mechanics. Mechanics deals with the motion of bodies under the action of forces. Heat. Heat is a form of energy which flows from one body to another body due to temperature difference. What is thermodynamic? The branch of physics which is concerned with the relationship between other forms of energy and heat energy. Optics. It is the branch of physics that studies the behavior and properties of light, including its interaction with matter and the construction of instruments that use or detect it. Sound. Sound is a vibrations that travel through air or another medium and can be heard when they reach a person's or animal's ear. What is hydrodynamic? A branch of physics that deals with the motion of fluids and the forces acting on the fluid on the solid bodies immersed in the fluids. Next we have special theory of relativity. Special theory of relativity, as we have studied in chapter number 19 of second year, it is concerned with the inertial frame of reference. It concerned with the inertial frame of reference. It has two postulates. All laws of physics are seen in our inertial frame of reference. Also we said that speed of light is a universal constant.
General theory of relativity. General theory of relativity treats those problems involving in non-inertial frames of reference. Mean it is concerned with non-inertial frames of reference. Next we have quantum physics. Quantum physics or quantum mechanics describes how the universe works at a level smaller than atoms. How the universe works at a level smaller than atoms. Atomic physics, study of atoms. Atomic physics is the branch of physics that studies not only the nucleus but also electrons. मीन न्यूक्लियस के अंदर मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और उसके अलावा न्यूक्लियस के बाहर जो रिवॉल्व कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, उनको भी हम स्टडी करते हैं. मीन पूरे एटम की स्टडी को हम एटॉमिक फिजिक्स कहते हैं. न्यूक्लियर मॉलिक्यूलर फिजिक्स, द स्टडी ऑफ physical properties of molecules, the chemical bonding between atoms as well as the molecular dynamics. Nuclear physics deals with the study of atomic nuclei. Superconductivity, a complete disappearance of electrical resistance in a substance, especially at very low temperature. हम जानते हैं सुपर कंडक्टर हम चैप्टर 17 में पढ़ चुके हैं कि जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हो जाती है, एंड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर रेजिस्टेंस बिकम्स जीरो. दोज मटेरियल्स आर कॉल्ड सुपर कंडक्टर्स एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड सुपर कंडक्टिविटी. नेक्स्ट वी हैव सुपर फ्लूइडिटी. It is the property of fluid with zero viscosity, which therefore flows without any loss of kinetic energy. Plasma physics, the branch of physics which deals with the plasmas and their interaction with electric and magnetic fields. Magnetohydrodynamic or magnetofluidodynamics. Magnetohydrodynamics is the study of the magnetic properties and behavior of electrically conducting fluids. Space physics, it is the study of plasmas as plasma occurs naturally in the Earth's upper atmosphere and within solar system. Interdisciplinary areas of physics are those branches of science in which the laws or principles of physics are applied. For example, astrophysics, astrology में physics के laws use करते हैं और वो बन जाती है astrophysics. इस तरह biology में biophysics, chemistry में chemical physics, engineering में engineering physics, geology में geophysics, medical में medical physics, physical oceanography and physics of music. Physical quantities, all measurable quantities are called physical quantities. For example, length, mass, time, temperature, velocity, momentum, work, torque, etc. And we know physical quantities are those upon which the basis of physics lie. Or we can say physical quantities are those quantities in terms of which we describe the laws of physics. And there are two types, base quantities and derived quantities, while those quantities which cannot be measured are called abstract quantities. For example, honesty, anger, love, hate, etc. These are quantities, but they are not measurable. So measurable quantities are called physical quantities, and those quantities which cannot be measured are called abstract quantities. Types of physical quantities are two, base quantities and derived quantities. Base quantities are those which cannot be derived from the other physical quantities. They are fixed number of quantities, and we know they are 7 in number. Initially they were 3, mass, length, time. Now they are 7 in number. While derived quantities are those quantities which are derived from the base quantities. For example, velocity,
for example force, for example acceleration, momentum, kinetic energy, power, etc. These are the example of base quantities: mass, length, time, etc. and and derived quantities are velocity, force, work, torque, momentum, etc. And what is a unit? The reference standard of measurement of a physical quantity is called unit. Here we have different system of units: FPS, CGS, MKS और SI. आजकल हम सिस्टम इंटरनेशनल या SI यूज कर रहे हैं, उससे पहले हम FPS, CGS और MKS यूज करते थे. FPS में लेंथ was measured in foot, mass in pounds, while time in seconds. CGS, C for centimeter, लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर करते थे, मैस को ग्राम्स में और टाइम को सेकंड में. MKS, M मीटर, लेंथ के लिए मीटर, किलोग्राम, मैस के लिए किलोग्राम और टाइम के लिए सेकंड. लेकिन MKS को 1960 में एक्सटेंड कर दिया गया क्योंकि 4 नई क्वांटिटी जो थी वो ऐड कर दी गई थी बेस क्वांटिटीज के अंदर, और जो सिस्टम बना वो सिस्टम इंटरनेशनल SI बना. उसमें लेंथ को मीटर में ही, मैस को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता है. System International was established in 1960. It is built up of 3 kind of units: base units, derived units and supplementary units. The units of the base quantities are called base units. लेंथ के लिए मीटर, मैस के लिए किलोग्राम, टाइम के लिए सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पेयर, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर के लिए केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल. हो सके तो आप इनके जो यूनिट्स हैं इनकी डेफिनेशन भी याद कर लें, आपकी बुक के एंड में दी हुई हैं. टेक्स्ट बुक के एंड में ये तमाम डेफिनेशन दी गई हैं: मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला, मोल एटसेट्रा. इन सब को आप वहां से तैयार कर सकते हैं. Supplementary units. Supplementary units are 2 units. There are certain units which were not classified by International Committee. Either they are base units or derived units. 2 यूनिट्स के ऊपर इत्फाक नहीं हो पाया था 1960 में कि इनको हम बेस यूनिट्स कहेंगे या ड्राइव यूनिट्स कहेंगे. उनको हम कहते हैं ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं. वो है प्लेन एंगल के लिए रेडियन और सॉलिड एंगल के लिए स्टीरेडियन. रेडियन एक प्लेन एंगल है जो एक सर्कल के सेंटर में बनता है जब लेंथ ऑफ द आर्क जो होगी वो रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल होगी. थीटा इज इक्वल टू S ओवर R. अगर हम S को R पुट करते हैं तो R ओवर R इज इक्वल टू 1 रेडियन. S जो है यहाँ पे लेंथ ऑफ द आर्क है जो सर्कल के सरकमफेरेंस के ऊपर हम काटते हैं. सर्कल के सरकमफेरेंस के ऊपर अगर हम लेंथ ऑफ द आर्क को रेडियस के इक्वल पुट करेंगे तो थीटा जो होगा वो 1 रेडियन बनेगा. इसी तरह स्टीरेडियन एक स्फीयर के सेंटर में बनता है बाय एन एरिया ऑफ इट्स सरफेस इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस. एक स्फीयर के ऊपर जो सरफेस होती है वहां पे अगर हम आर स्क्वायर के बराबर, स्क्वायर ऑफ रेडियस के बराबर एक एरिया ले लें और उससे हम एंगल बनाएं, उसको ज्वाइन कर दें विद द सेंटर, वी गेट 1 स्टीरेडियन. इसका फार्मूला होता है एरिया ऑफ द सरफेस डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ सरफेस ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर. 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर. तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, हमारे पास बचा 4 पाई. याद रखिएगा स्टीरेडियन 4 पाई स्टीरेडियन ही होता है. अगर आप रेडियस की वैल्यू चेंज भी करोगे तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एरिया 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाता है. तो स्टीरेडियन डज नॉट डिपेंड अपॉन रेडियस. रेडियस आप डबल करो, हाफ करो, 3 टाइम करो, 4 टाइम करो, डज नॉट मैटर. स्टीरेडियन जो है इसका फार्मूला a बाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन इसका जो वैल्यू होती है 4 पाई स्टीरेडियन ही रहती है. प्रीफिक्सेस. Prefixes are the preceding factors used to represent very small and very large physical quantities in SI units. Here are some prefixes given. आप इनको याद कर लीजिएगा. 10⁻24 को योटा, 10⁻21 को जीटा, 10⁻18 को एक्सा, 10⁻15 को पेटा, 10⁻12 को टेरा, 10⁻9 को गीगा, 10⁻6 को मेगा,
10⁻³ को किलो, 10⁻² को हेक्टो, 10⁻1 को डेका कहते हैं, जबकि 10⁻⁻1 को डेसी कहते हैं। 10⁻² को सेंटी, -3 मिली, -6 माइक्रो, 10⁻⁹ को नैनो, -12 को पिको, -15 को फेमटो, -18 को आटो, 10⁻21 को जेप्टो, 10⁻24 को योक्टो। ये इनको जुबानी याद करना है आप लोगों ने, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दीज आर द कन्वर्जन फैक्टर्स, ये भी आप याद कर लीजिएगा। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, 1 सेंटीमीटर 10⁻² मीटर के इक्वल होता है, 1 मिलीमीटर 10⁻³ मीटर के इक्वल होता है, 1 माइक्रोन 10⁻6 मीटर को कहते हैं, 1 मिली माइक्रोन 10⁻9 मीटर को कहते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर को कहते हैं। 1 इंच इक्वल होता है 2.54 सेंटीमीटर के, 1 फुट इक्वल होता है 30.48 सेंटीमीटर के, 1 माइल इज इक्वल टू 1.609 किलोमीटर, 1 माइल also equal to 10⁻³ inches, 1 centimeter is equal to 0.3937 inches, 1 meter is equal to 39.37 inches, 1 kilometer is equal to 0.6214 miles। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपैरिजन फैक्टर्स हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा। Errors and uncertainties. As we know, every measurement is uncertain or imprecise to some extent. What are the main causes of error or uncertainties? Number 1, negligence or inexperience of a person. Number 2, faulty apparatus. And number 3, inappropriate method or technique. Types of error. 2 types हैं, random error और systematic error. Random error, when repeated measurements of a quantity give different values under the same conditions. इसका cause हमें पता नहीं होता, its cause is unknown to us. And how this error can be reduced? By taking several measurements and by taking their average. Mean average value लेके आप random error को reduce कर सकते हो. Systematic error refers to an effect that influences all the measurements of a particular quantity equally. It occurs due to some definite rules and it can be reduced by applying correction factor. Significant figures. In any measurements, the accurately known digits and the first doubtful digits are called significant figures. For example, the number 12.3 is said to have 3 significant figures. Explanation है, if we are given a scale, millimeter rod, on which rulings are made every millimeter and we are asked to measure the length of any line, let the end point of the line lies between 126.5 millimeter and 127.5 millimeter. By convention, the observer records the length of the line as 127 millimeter. The maximum uncertainty in this case is plus minus 0.5 mm or plus minus 0.05 centimeter. Thus, the result 127 millimeter contains 3 digits 1, 20, 1, 2 and 7, out of which 2 digits 1 and 2 are accurately known, while third digit 7 is doubtful. So, by rules, there are 3 significant figures in this measurement. Further examples of significant figures. 5231, ये हमारे पास measurement है, इसमें तमाम digits जो हैं वो significant हैं. All the digits from 1 to 9 are significant. कोई मसला नहीं है, 1 से लेकर 9 तक, मीन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जो डिजिट भी आ जाएगी मेजरमेंट में वो सिग्निफिकेंट होगी. बट 0 मे बी और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट. 0 अगर आप देखें ये 3 के राइट साइड पे 3 0 डाली हुई हैं और ये एक होल नंबर है. जब होल नंबर होंगे तो उस वक्त ये डिपेंड करता है एक्यूरेसी ऑफ द मेजरिंग डिवाइस के ऊपर, मीन लीस्ट काउंट के ऊपर ये डिपेंड करती हैं. Significant figures may vary from 1 to 4 depends upon the least count. Least count अगर 1 kg है, suppose ये 3000 kg था, अगर 1 kg था तो 3 होंगी. जो तीनों जीरो जो होंगी वो significant figures होंगी और चौथा जो है वो 3 भी इंक्लूड करेंगे, तो इसका मतलब 4 बन जाएंगे. 4 significant figures होंगी अगर least count 1 kg होगा. अगर 10 kg होगा तो
3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। अगर 100 kg होगा तो 2 होंगे, 1000 kg होगा तो सिर्फ 3 रह जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ होल नंबर डिपेंड अपॉन द लीस्ट काउंट। ये है नेक्स्ट 0 पॉइंट या 0.4000। जब जो मेजरमेंट है वो डेसिमल फ्रैक्शन में हो, अशारिया में हो और राइट साइड पे जीरो हों, दे आर कंसीडर्ड एज अ सिग्निफिकेंट। तो इसमें ऑल जीरोज आर सिग्निफिकेंट। इसी तरह 0.0002 में अब 2 के राइट साइड पे जीरो दिए गए हैं और ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। डेसिमल फ्रैक्शन में राइट साइड पे जीरो होंगे तो वो कंसीडर किए जाएंगे सिग्निफिकेंट, और लेफ्ट साइड पे होंगे तो सिग्निफिकेंट वो कंसीडर नहीं किए जाएंगे। इसी तरह इन बिटवीन नॉन जीरो डिजिट जो सिग्निफिकेंट फिगर्स जीरोज होते हैं, इन बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स जो जीरोज होंगे, दे आर आल्सो कंसीडर्ड एज अ सिग्निफिकेंट। तो इसमें आप देख सकते हैं 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। नेक्स्ट है प्रिसीजन। प्रिसीजन स्टैंड्स फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ एरर और अनसर्टेनिटी इन अ मेजरमेंट। A precise measurement is one which has less error or less absolute uncertainty. The precision of a measurement is determined by the least count of the instrument or device being used. काफ़ी important ये चीज़ है। नोट करें कि जो एरर होता है ये इक्वल टू अनसर्टेनिटी, ये हाफ ऑफ द लीस्ट काउंट होता है। हाफ ऑफ द लीस्ट काउंट, ये बात याद रखनी है। एरर इक्वल टू अनसर्टेनिटी इक्वल टू हाफ ऑफ द लीस्ट काउंट। जो इधर हाफ है ना, ये बटे में 2 है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास जो लीस्ट काउंट आ जाएगी वो आ जाएगी 2 टाइम अनसर्टेनिटी। तो लीस्ट काउंट को हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या प्रिसीजन भी कहते हैं। सो प्रिसीजन इक्वल टू एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इक्वल टू लीस्ट काउंट इज इक्वल 2 टाइम अनसर्टेनिटी। सो मतलब अगर अनसर्टेनिटी थी 0.05, तो जब उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.0 वो बन जाएगा 1। 0.05 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 0.1 बन जाएगा। तो इसका मतलब जितना भी अनसर्टेनिटी होगी उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो वो हमारी लीस्ट काउंट के इक्वल आ जाती है। ये आपने याद रखनी है। और प्रिसीजन, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या लीस्ट काउंट एक ही बात है। एक्यूरेसी स्टैंड्स फॉर द relative error or fractional uncertainty or percentage uncertainty. An accurate measurement is one which has less fractional uncertainty or percentage uncertainty. अब ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेट्स सी। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी और relative error is equal to least count divided by measured value. जब आपको फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी या relative error निकालना होगा तो आप मेजरिंग डिवाइस की लीस्ट काउंट को मेजर्ड वैल्यू के ऊपर, रीडिंग के ऊपर डिवाइड कर दें। और अगर आपने परसेंटेज निकालनी है तो लीस्ट काउंट को मेजर्ड वैल्यू के ऊपर डिवाइड करके जो आंसर आता है, इसको हम फ्रैक्शनल एरर कहते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। द स्मॉलर अ फिजिकल क्वांटिटी द मोर प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट शुड बी यूज। जितनी क्वांटिटी छोटी मेजर करनी होगी उतना हमें ज़्यादा छोटे लीस्ट काउंट में ज़्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूज करना पड़ेगा। ये भी बात याद रखनी है। असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट। अब हम जब मेजरमेंट्स लेते हैं तो उनको मेजरमेंट्स को फिर हमने फाइनल रिजल्ट में पुट करना होता है। मीन हम मे बी हम एडिशन कर रहे हैं, मे बी हम सब्ट्रैक्शन करें, मे बी हम मल्टीप्लिकेशन करें, डिवीजन करें, कोई पावर फैक्टर लें, मीन वैल्यू लें, तो उस वक्त फिर हमें टोटल अनसर्टेनिटी कैसे निकालनी होगी। फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जब हम मेजरमेंट्स को ऐड कर रहे होंगे या सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे, उस वक्त हम मेजरमेंट्स को ऐड कर लेंगे, जो सिंपल मेजरमेंट्स होंगे, या उनको ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब उसमें जो टोटल अनसर्टेनिटी होगी प्लस माइनस करके लिखेंगे। वो कैसे लिखेंगे, वो लिखेंगे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडेड। मीन लीस्ट काउंट जो दिए गए होंगी साथ हमें मेजरमेंट्स के, उनको हम ऐड कर देंगे। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडेड टू गेट द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट। फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडेड टू गेट द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट। परसेंटेज अनसर्टेनिटी हम निकाल लेंगे पहले, वही तरीका है, याद रखना, लीस्ट काउंट डिवाइड बाई मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 100। इस तरह हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालेंगे, फिर उसको ऐड कर देंगे। खा आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, खा आप डिवीजन कर रहे हो, तकसीम कर रहे हो। जब मेजरमेंट्स को आप जिस तरह फ़र्ज़ किया
आप प्रेशर निकाल लो, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया, तो फोर्स और एरिया दोनों ये डिवाइड हो रहे हैं। तो अगर फ़र्ज़ किया फोर्स में 2% अनसर्टेनिटी है और एरिया में 4% अनसर्टेनिटी है, तो प्रेशर में कितनी होगी? तो फोर्स की 2% प्लस एरिया की 4% इक्वल टू 6% आ जाएगी। ये मैंने एग्जाम्पल दी है। आगे है पावर फैक्टर, मल्टीप्लाइंग द परसेंटेज अनसर्टेनिटी बाय दैट पावर टू गेट द परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अब जब फार्मूला में किसी भी मेजरमेंट की पावर होगी तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उस मेजरमेंट में परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालेंगे, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह मैंने बताया आप लोगों को, लीस्ट काउंट डिवाइड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100 से। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम उस परसेंटेज अनसर्टेनिटी को जितनी पावर है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्ज किया वॉल्यूम ऑफ क्यूब था या वॉल्यूम ऑफ स्फीयर था 4/3 पाई आर क्यूब, तो आर क्यूब पावर 3 है, तो आर के अंदर आप परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाल के उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर अनसर्टेनिटी इन द एवरेज वैल्यू ऑफ मेजरमेंट्स, जब आपको एवरेज वैल्यू लेनी होती है तो फिर अनसर्टेनिटी कैसे निकालते हैं? फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ मेजर्ड वैल्यू। सबसे पहले जितनी भी मेजर्ड वैल्यू, जितनी वैल्यू हमें दी गई थी, मेजरमेंट्स दी गई थी, उनको आपने ऐड करके उनकी नंबर पे, उनकी तादाद पे तकसीम कर देना है। सम ऑफ टर्म्स ओवर नंबर ऑफ टर्म्स से एवरेज आ जाएगी। फिर जो एवरेज वैल्यू आएगी उसको तमाम मेजरमेंट के साथ कंपेयर करके उनका फ़र्क निकालना है, डेविएशन निकालनी है, डिफरेंस निकालना है। जो डिफरेंस होगा उसको दोबारा मीन लेंगे तो वो हमारी आ जाएगी uncertainty in the average value. For the uncertainty in a timing experiment, the uncertainty in the time period of a vibrating body is found by dividing the least count of the timing device by number of vibrations. लीस्ट काउंट को नंबर ऑफ वाइब्रेशन पे डिवाइड कर देंगे, ये टाइम पीरियड में अनसर्टेनिटी निकाल लेंगे इस तरह। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला याद रखना है। टाइम लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग डिवाइस डिवाइड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। एग्जांपल दी गई है 30 वाइब्रेशन सिंपल पेंडुलम की रिकॉर्ड की गई थी बाय स्टॉप वॉच और लीस्ट काउंट थी 0.1 सेंटीमीटर और टाइम आया हमारे पास टोटल टाइम 54.6 सेकेंड। ये टोटल टाइम है। टाइम पीरियड निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन को नंबर ऑफ वाइब्रेशन पे डिवाइड कर देते हैं। 54.6 डिवाइड बाय 30 1.82 1.82 सेकेंड इज द टाइम पीरियड और इसके अंदर अनसर्टेनिटी है कितनी, लीस्ट काउंट थी 0.1 सेकेंड डिवाइड बाय 30 0.003, तो ये आ जाएगी 1.82 प्लस माइनस 0.003। ये हम प्लस माइनस कर देंगे क्योंकि ये अनसर्टेनिटी है, मे बी प्लस हो रही हो मे बी माइनस हो रही हो। Hence it is advisable to count large number of vibrations to reduce the error. एरर कम करने के लिए जो वाइब्रेशंस होती हैं वो ज़्यादा काउंट करनी चाहिए। ये हमें एक डायरेक्शन या हदायत दी जाती हैं। नेक्स्ट है डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ईच बेस क्वांटिटी इज कंसिडर्ड एज अ डायमेंशन। हर बेस क्वांटिटी को डायमेंशन कहेंगे कब, जब उसको हम एक स्पेसिफिक सिंबल की फॉर्म में शो करेंगे, रिटन विद इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। मैस के लिए कैपिटल एम ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट डाल देंगे, लेंथ के लिए कैपिटल एल, टाइम के लिए कैपिटल टी, टेम्परेचर के लिए के कैपिटल के और थीटा भी यूज़ करते हैं। इसी तरह करंट के लिए ए कैपिटल ए और आई भी यूज़ करते हैं। इसी तरह मोल के लिए MOL यूज़ करेंगे, कंडेले के लिए CD यूज़ करेंगे। तो ये सिंबल्स हैं। इन सिंबल्स की फॉर्म में हर बेस क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे, इसे कहते हैं डायमेंशन। इनके एडवांटेजेस क्या हैं, होमोजेनिटी ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन, मीन हम कोई भी इक्वेशन को चेक कर सकते हैं कि वो डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है, इसको हम होमोजेनिटी कहते हैं। हमें कोई इक्वेशन दी गई होगी, हम उसकी राइट साइड की भी डायमेंशन निकाल लेंगे, हम लेफ्ट साइड की भी डायमेंशन निकाल लेंगे। अगर वो डायमेंशन इक्वल हुई तो इसका मतलब वो इक्वेशन करेक्ट है और हम कोई पॉसिबल फार्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं। इसी तरह कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, मसलन ये फार्मूला दिया हुआ है S इज इक्वल टू हाफ वी आई टी प्लस ए टी स्क्वायर, हालांकि ये फार्मूला होता है S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हाफ जो है वो ए टी स्क्वायर के साथ लगा होता है, लेकिन मैंने हाफ वी टी लगा दी है। अब देखें दोनों तरफ डायमेंशन निकाल के देखें सेम आएंगी, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो ये इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। करेक्ट इक्वेशन वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, लेकिन डायमेंशन से ये S इज इक्वल टू हाफ वी टी प्लस ए टी स्क्वायर ये भी सही आ रहा है, लेकिन ये इसका डिसएडवांटेज है। इस तरह मिसिंग टर्म है S इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, तो अगर इसमें वी आई टी मिस है तो लेकिन ये भी डायमेंशनली करेक्ट है, ये भी इसका एक
इस तरह कोई एक्स्ट्रा टर्म ऐड हो सकती है, उससे भी डायमेंशन दोनों तरफ सेम आती है। द करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन इज confirmed experimentally. Dimension analysis से we cannot find the numerical value of constant की वैल्यू हम मालूम नहीं कर सकते हैं, इसे हम किसी एक्सपेरिमेंट से मालूम करेंगे। इसी तरह कुछ कांस्टेंट्स हैं जैसा कि स्ट्रेन है या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है या एंगल है या लॉगरिथमिक फंक्शंस होते हैं, उनकी हम जो है वो डायमेंशंस कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। ये कुछ डायमेंशंस दी गई हैं, आप लोगों के लिए स्पेशल हैं, इनको आपने लाजमी तौर पे तैयार करना है। वेलोसिटी की डायमेंशन, वेलोसिटी या स्पीड की डायमेंशन राइट साइड पे देखें एल टी इनवर्स दी गई है, एक्सेलरेशन की एल टी इनवर्स स्क्वायर है, फोर्स की एम एल टी पर -2 है, मोमेंटम की एम एल टी पर -1 है, वर्क एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, रोटेशन काइनेटिक एनर्जी एक्सेट्रा सबकी सेम है, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स स्क्वायर। याद रखिएगा वर्क और जो टार्क होते हैं, ये दो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनके ऐसा यूनिट डिफरेंट होते हैं लेकिन डायमेंशन यूनिट सेम होते हैं। इस तरह प्रेशर है एम एल इनवर्स टी इनवर्स स्क्वायर, टॉर्क एम एल स्क्वायर टी इनवर्स स्क्वायर, इम्पल्स है एंगुलर वेलोसिटी है टी इनवर्स होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन टी इनवर्स स्क्वायर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एम एल टी इनवर्स स्क्वायर है, एंगुलर मोमेंटम का एम एल स्क्वायर टी इनवर्स है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का एल टी इनवर्स स्क्वायर है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी एम इनवर्स एल क्यूब टी इनवर्स स्क्वायर है, सरफेस टेंशन का एम टी पर -2 है। याद रखिएगा सरफेस टेंशन और जो स्प्रिंग कांस्टेंट होते हैं इनके सेम ऐसे यूनिट्स होते हैं। स्ट्रेस है, स्ट्रेस का, प्रेशर का, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का, शियर मॉडुलस का और बल्क मॉडुलस का, इन सब का डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है एम एल इनवर्स टी इनवर्स स्क्वायर। एरिया का एल स्क्वायर, वॉल्यूम का एल क्यूब, डेंसिटी का एम एल पर -3। रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी डायमेंशन लेस है तो m पावर 0, l पावर 0, t पावर 0 इस तरह फार्मूला हम लिख सकते हैं, कोई डायमेंशन नहीं है। इसी तरह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, इसी तरह एंगल होता है, स्ट्रेन है, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, ये सारे दिए हुए हैं, इनका सब का स्ट्रेस वाला ही डायमेंशंस हैं। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का एम एल इनवर्स टी इनवर्स है, टाइम पीरियड का m पावर 0, l पावर 0, t है सिंपल, फ्रीक्वेंसी का m पावर 0, l पावर 0, t पावर -1 है, फोर्स कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट का m l पावर 0, t पावर -2 है। मैंने बताया आपको फोर्स कांस्टेंट और सरफेस टेंशन है सेम ऐसा यूनिट, सेम डायमेंशनल फार्मूला। इसी तरह एंगुलर मोमेंटम और जो प्लैंक कांस्टेंट होते हैं उनके सेम डायमेंशनल यूनिट होते हैं। उसी तरह जो है मोमेंटम और इम्पल्स के सेम डायमेंशनल यूनिट्स होते हैं। टेम्परेचर का केल्विन है, हीट एनर्जी का एम एल स्क्वायर टी इनवर्स स्क्वायर है, प्लैंक कांस्टेंट का एम एल स्क्वायर टी इनवर्स है, सोलर कांस्टेंट का m पावर 0 l टी इनवर्स क्यूब है, l टी इनवर्स क्यूब। इंट्रोपी का m l स्क्वायर टी इनवर्स स्क्वायर केल्विन इनवर्स। करंट का m पावर 0, l पावर 0, a पावर 0, a t पावर 0 a, क्योंकि करंट खुद ऐसा यूनिट, बेस यूनिट है, बेस क्वांटिटी है तो इसका a होगा। चार्ज का m पावर 0, l पावर 0, t a या a t लिखते हैं, या t a, जो कि q इज इक्वल आई टी होता है, i का a और t का कैपिटल T आ जाएगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, रेजिस्टेंस है, ये सारे जो मशीन यूनिट दिए गए हैं आप इनको अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। ये कैपेसिटेंस का है m इनवर्स l इनवर्स स्क्वायर t पर 4a। इंडक्टेंस का है परमिटिविटी या फ्री स्पेस, इसका दिया हुआ है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डायमेंशन लेस है। इम्पीडेंस जिसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, इसका रेजिस्टेंस वाला ही है। मैग्नेटिक इंडक्शन B का, मैग्नेटिक फ्लक्स का, परमिएबिलिटी फ्री स्पेस, रिलेटिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेडियो एक्टिव डिके कांस्टेंट का टी इनवर्स, और वर्क फंक्शन क्योंकि एनर्जी है एम एल स्क्वायर टी इनवर्स स्क्वायर। ये सारे अच्छे तरीके से याद कीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जो पेपर में आते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।